Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before I begin with the news for today, let's look at the comment box. And the first comment is from Billionaire Biography 9959, and it's a post of appreciation where he or she is appreciating this news analysis, and she is saying that she is dependent on this particular news analysis for her GK preparation. So what we as an institution can do is that we are going to add some more products on the Clad Prep YouTube channel, and if you want anything else, you can always contact us, and whatever help we can do for you, we would try to do it. Okay. Next is from Read with Mahi. So she has answered the question which were asked in the previous class, and Read with Mahi and Pranav Singh Rajawat, these are two active members and they always answer and answer them correctly also. So the first question which she has answered is, where is the headquarter of Wildlife Institute of India is in? So she has mentioned it is in Dehradun, which is capital of Uttarakhand. Perfectly all right, it's totally correct. जो Wildlife Institute of India है, इसका जो headquarter है वो देहरादून में ही है. Okay, next is your I ask you what is the IUCN status of tiger, and its status has been mentioned as endangered, which is also correct. What you can do is you can answer now what is the full form of IUCN. So in the comment box, mention what is the full form of IUCN. Okay. Also I asked all of you what are the five, what is the Panchsheel, what exactly is Panchsheel, and what are the 5 principles of Panchsheel which have been decided between India and China. So Read with Mahi as well as Pranav, both of them have mentioned the 5 principles of Panchsheel. इंडिया और चाइना के बीच में ये 1954 में हमने डिसाइड करे थे, एंड लेटर ऑन ये बेसिक प्रिंसिपल्स बने आपके नाम मूवमेंट के भी. नॉन अलाइन मूवमेंट जो था जो आपका इंडिया का इनिशिएटिव था प्लस इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया, इन तीनों का जो इनिशिएटिव था, इसके अंदर में भी हमने इन्हीं पंचशील को आपका बेस बनाया, इन प्रिंसिपल्स को बेस बनाया. एंड वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, आई थिंक आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. ठीक है. सो पहला है आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, व्हिच मींस बोथ दीज कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू अटैक ईच अदर. दोनों एक दूसरे कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को यहां पे म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे. बट यू नो दिस वेरी वेल कि हमने इसको 54 में पंचशील को मेजर करा, बट नॉट इवन 7-8 ईयर्स लेटर चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था इन 1962. Next is mutual non-aggression. Again, this principle was broken by China in the year 1962. Third is mutual non-interference in each other's internal affairs. तो चाइना क्लेम्स कि इंडिया ने तिब्बत के अंदर में और दलाई लामा को यहाँ पे आपका असाइलम देके यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का पहले ब्रीच करा था. दैट्स वाई पंचशील चाइना ने नहीं, इंडिया ने ब्रेक कर दिया था एज पर देम. Fourth is equality and mutual benefit, and fifth is your peaceful and coexistence. Peaceful coexistence was the fifth point. तो ये 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के. So you should have an idea about कि 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके पंचशील के. Okay. Again, Pranav Singh Rajawat, as always, he has also given all the answers as correctly. He has also given us the date, but I think you just need to know कि इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था, एंड 1954 में साइन हुआ था, और इन 5 प्रिंसिपल्स हैं क्या पंचशील के. तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. इट्स कर्मा 13 का. सर, कैन यू सजेस्ट सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर दिस ईयर, लाइक लास्ट ईयर चंद्रयान 3 एंड इजराइल हमास एक्सेट्रा आर सुपर इंपॉर्टेंट. ओके, सो इवन आपका जो इजराइल हमास है वो इस साल भी इंपॉर्टेंट है. रशिया यूक्रेन जो है वो इस साल भी इंपॉर्टेंट है. जनवरी का अगर मैं एक टॉपिक याद करूं तो रामलला टेम्पल इंपॉर्टेंट है. फेब्रुअरी में इस बार बजट नहीं आया था आपका, लेटर बजट में आया, तो बजट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर मैं देखूं तो आपका पेरिस ओलंपिक्स, T20 वर्ल्ड कप, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. इवन पैरालंपिक्स जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं. ईरान इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका. साइंस एंड टेक में जो आपके नेशनल स्पेस डे है, आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, इस टाइप के डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड अर्थ डे इस बार आपका जो हिंदू न्यूज़पेपर ने बहुत डिटेल में कवर किया था, तो वर्ल्ड अर्थ डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो देयर आर मेनी टॉपिक्स, एंड very soon there would be an announcement regarding a special session regarding this. तो उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का वेट करिए, और वहां पे प्रोबेबली आपके जो फर्स्ट 6 मंथ्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा.
नॉट प्रोबेबली बट वील ट्राई कि आपके जो 6 मंथ्स के टॉपिक है वो वहां पे कवर हो जाए। एंड एक और सेशन हम करेंगे अक्टूबर के अंदर में, जिसमें जो रेस्ट ऑफ द सेशन, एक कंप्लीट सेशन नॉट जस्ट ऑफ जीके बट ऑल्सो ऑफ लीगल, इट वुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो यहां उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का वेट करना। ओके, एंड सम ट्रिक्स यू यूज फॉर एलिमिनेशन जीके क्वेश्चन ऑप्शंस। सो एलिमिनेशन जो टेक्निक्स होती हैं, जो आपके जिसके अंदर में एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा मांगा जाता है, उस टाइप के पेपर्स में ज्यादा वर्क करती हैं। जहां आपके वन लाइनर आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहां एलिमिनेशन टेक्निक इतनी कारगर नहीं होती है। बट स्टिल ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिमिनेशन टेक्निक जो है तो जीके आपके क्लैट के लिए तो नहीं होगी, बट फिर भी जैसे जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम्स में वहां पे यूज होती है, जिसमें एक होता है कि जिसमें आप जो अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो जो 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें आप रिस्क ले सकते हैं 50-50, जिसे हम चॉइस कहते हैं। तो इस तरीके से एक टेस्ट होता है जिसमें हम आपके जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है कि जब स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा वाइड लिखे हुए हो तो प्रोबेबली या तो वो करेक्ट होगा या वो पक्का ही इनकरेक्ट होगा, उसमें देयर इज नो बिटवीन, की वो कभी ग्रे एरिया में नहीं आएगा। तो इस टाइप के कुछ टेस्ट होते हैं जीके में। व्हाट आई विल डू इज कि कभी कोई एक सेशन के अंदर में आई जॉट डाउन द एलिमिनेशन टेक्निक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को करके भी यूज कर सकते थे। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्लैट के जीके के देखे, उसके अंदर में एलिमिनेशन टेक्निक का इतना यूज नहीं होता जितना आपकी रिकॉल मेमोरी का होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं उनके मल्टीपल रिविजन्स करिए, एंड उसके बाद अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी बिल्ड होती है तो आप जो ये 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक है इसको बेटर यूज कर पाएंगे। तो इसलिए अभी आपका फोकस होना चाहिए आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसको मल्टीपल रिविजन करने का। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं श्रुति शर्मा 6680। सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इंडियाज बॉर्डर विद चाइना एंड स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स, देयर मेनी कंफ्यूजन ऑल्दो यू हैव कवर्ड बट ड्यू टू बैकलॉग एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक इट्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन। ओके श्रुति, सो हम एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में इंडिया चाइना बॉर्डर को ही डिस्कस कर लेते हैं। सो आई हैव इंक्लूडेड सर्टेन मैप्स। मैप से क्या होता है, जहां पर भी आप मैप पॉसिबल हो आपके लिए, प्लीज यूज दिस मैप। तो व्हाट यू कैन डू इज कि इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑल्सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, और इस पर्टिकुलर पेज पे जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं इसी के अंदर से आप इजीली उनको याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बात करूंगा कि नदर्न सेक्टर में बेसिकली और जम्मू कश्मीर के जो रीजन है वहां पे आपके कौन कौन से टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि 2019 के अंदर में हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बना दिया था। लद्दाख वॉज मेड अ सेपरेट यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज मेड अ सेपरेट यूटी। सो यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि अब आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अब आपका वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न फ्रंट में हो चुका है, और जो पूरा का पूरा नदर्न बॉर्डर है जो चाइना से लगता है, इट इज टचिंग नाउ लद्दाख। सो आई कांट से कि अब जम्मू एंड कश्मीर के साथ चाइना की बॉर्डर टच नहीं होती है, यूटी ऑफ लद्दाख की टच होती है। विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछ लिया कितनी स्टेट्स की टच होती है, तो नाउ यू नो कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख इज नॉट अ स्टेट, तो ये स्टेट में नहीं काउंट होगा। तो लेट्स अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, सो इट कैन आस्क कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव अ बॉर्डर, हैव शेयर अ बॉर्डर विद द कंट्री ऑफ चाइना। सो नाउ यू शुड नो कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अब आपके उस स्टेट्स में नहीं आते, यूटीज में नहीं आते, स्टेट्स में नहीं आते हैं। तो आपकी जो बाकी की 4 स्टेट्स हैं, सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर टच करती हैं आपकी चाइना के साथ में। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम, एंड देन फाइनली योर अरुणाचल प्रदेश। सो ये 4 स्टेट्स एंड प्लस योर यूटी ऑफ लद्दाख, प्लस योर यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये 4 तो स्टेट्स हो जाएंगी और एक यूनियन टेरिटरी, टोटल 5 हैं जिनकी चाइना के साथ में बॉर्डर टच होती है। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो बॉर्डर्स हैं इनके नाम क्या है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है, इस पर्टिकुलर जो बॉर्डर लाइन है इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। दिस इज द मैकमोहन लाइन। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये चाइना और ब्रिटिश इंडिया के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शिमला एग्रीमेंट 1940 में जाके डिसाइड करी। सो दिस वाज डिसाइडेड बिटवीन इंडिया एंड
एक्चुअली टिबेट रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये 1940 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन वाज अ पर्सन जिन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया था, और दिस इज द करंट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज इट क्लेम्स दैट इट वाज नॉट पार्टी टू द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1914. तो वो क्लेम नहीं करता है. पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ टिबेट का पार्ट मानता है. इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ साउथ टिबेट. जो बाकी का टिबेट है उसके अलावा जो है उसको ये साउथ टिबेट मानता है. और आपका जो टिबेट है इसको ये नाम देता है ज़ीजियांग. So this is the, I hope it is visible to you. So Xizang is the name of the Tibet, not South Tibet या अरुणाचल प्रदेश का नहीं, because मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है कि चाइना ने जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का क्या नाम दिया है? सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना के लोग या चाइनीज के अंदर में हम क्या बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको उसमें मेंशन करना है. बट रिमेंबर दिस कि टिबेट को ज़ीजियांग कहता है. जिनजियांग एक अलग प्रोविंस है जिसके अंदर में उसके उगियार माइनॉरिटी रहती है, जिनको देयर आर एलिगेशन कि ये उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है. मुस्लिम मेजॉरिटी ये आपका रीजन है जिनजियांग. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ज़ीजियांग which is Tibet now, और आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश का. So remember this कि मैकमोहन लाइन है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में. Then what exactly is your LAC? तो जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो अभी ये वाली है. एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर हम बॉर्डर मानते हैं तो जो अक्साई चीन पार्ट है, अक्साई चीन अक्साया हुआ है, वो वाला पार्ट चाइना का पार्ट माना जाएगा. दैट वुड बी पार्ट ऑफ चाइना. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. और ये जो LAC है इट इज कंकरेंस विथ मैकडोनाल्ड लाइन, नॉट मैकमोहन, इट इज योर मैकडोनाल्ड लाइन. ओके, एंड जो ये वाली लाइन है जो इंडिया क्लेम करता है कि दिस इज द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, दिस इज द जॉनसन लाइन. This is the Johnson line. So please make a note of these. There are three borders between India and China. One is your McMahon line, which is the current border between India and Arunachal Pradesh. The second is your LAC, line of actual control, which is concurrent with the McDonald line, which was decided between India and China. And third is your Johnson line, which is the apparent line which India considered as the border between China and India. Okay, so these are the three. One more area is there. If you can see this particular map properly, you would see that this particular portion is in the control of Pakistan, and this is basically your POK. And there was one particular valley which was earlier part of POK, but in 1963, this particular lined area was ceded to China by Pakistan as a compromise to resolve all of their dispute between them. And this particular area is Sakshagam Valley. So this valley is also important. This is known as Sakshagam Valley, which was part of POK and it was ceded to China by Pakistan as a solution or as a last resort for all of their border dispute. तो ये आपका समरी हो जाएगा आपके इंडिया चाइना बॉर्डर का. ओके, तो ये है आपका. इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए 93, 1996 के अंदर में और 2013 के अंदर में हम 3 बार बॉर्डर एग्रीमेंट्स पे साइन कर चुके हैं. फर्स्ट वन वाज इन द ईयर 1993. तो ये कुछ आपके डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इंडिया चाइना बॉर्डर में इतना ही है हमारे पास करने को. स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और किसी और को भी श्रुति के अलावा भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ओके ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. सो अब इंडिया यूएई से रिलेटेड आपका न्यूज है. सो यूएई जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज यूएई इज द होम ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेट या एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड रेमिटेंसेस जो आती हैं यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स बाहर आपका अर्न करते हैं, हाईएस्ट जो है वो यूएई से ही आता है. सो जो इंडियन सिटीजन्स बाहर वर्क करते हैं, हाईएस्ट रेमिटेंसेस आपका यूएई से आता है. तो इसलिए यूएई आपके लिए इंपॉर्टेंट कंट्री. देयर इज वन मोर रीजन व्हाई यूएई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएई इज द फर्स्ट कंट्री
इज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सीपा, सो यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स फुल फॉर्म क्या है सीपा का। सीपा होता क्या है, विच इज बेसिकली अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके साथ हमने एक बीआईटी विच इज, if you want to mention the full form you can, but okay I'm telling you this, it is a bilateral investment treaty। तो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर में ड्यूटीज को रेगुलेट करने के लिए हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है, एंड यूएई वाज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हम दोनों साइन कर चुके हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया ने अभी अभी अपना जो एफटीए और जो बीआईटी है इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनके जो कंडीशंस होती हैं उनको चेंज करा है, और जो आपकी नया फॉर्म है बीआईटी का उसको साइन करने वाली यूएई फर्स्ट कंट्री है। बट ठीक है, आप इतना ही फोकस करिए कि यूएई इज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया ने एक सीपा और एज वेल एज एक बीआईटी साइन करा है। ओके, अब करंट न्यूज क्या है आपकी यहां पे। सो द करंट न्यूज इज कि इंडिया और यूएई ने 4 पैक्ट साइन करे हैं, आपके 4 पैक्ट साइन करे हैं। पहला तो है सिविल न्यूक्लियर डील, कि सिविल जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी को मैं सिविल पर्पस के लिए, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मैं अगर यूज करता हूं तो उसके लिए दोनों कॉपरेट करेंगे। सो इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन विद रशिया इन न्यूक्लियर एनर्जी, इसके पास, इंडिया के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, मैन हैंडलिंग सपोर्ट भी है यहां पे, तो उसके लिए अब ये इंडिया जो है वो यूएई का हेल्प करेगा। तो इसको लेके एक आपका ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है। सेकंड ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है आपका कि जो यूएई है उसके साथ हमने लॉन्ग टर्म के लिए एलएनजी सप्लाई का एक यहां पे पैक्ट साइन करा है। तीसरा है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको फिल करने के लिए हमने यहां पे यूएई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, और एक आबू धाबी में ऑनशोर ब्लॉक 1 है, मतलब बेसिकली एक ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट है, उसमें आपकी एक ऊर्जा भारत करके कंपनी है, उसको यहां पे हमने एक्सप्लोरेशन राइट प्रोवाइड करें, उसमें कुछ कंसेशन प्रोवाइड करें। इन 4 के अलावा, सो ये तो 4 ट्रेड पैक्ट्स हैं जो इंडिया यूएई ने साइन करे। इसके अलावा एक आबू धाबी, सिटी ऑफ आबू धाबी और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, तो जब आप श्योर नहीं होते हो कि इस एग्रीमेंट को हम कैसे लीगली फॉलो करेंगे, क्या क्या इसमें हमारी कंडीशंस होंगी, तो आप एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट साइन करते हो जिसे एमओयू कहा जाता है, कि हम अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करना चाह रहे हैं अभी, और हम स्टार्ट कर चुके हैं। जिस दिन हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि यस वी कैन ऑनर आवर कमिटमेंट्स, तब हम एक इसको एग्रीमेंट या पैक्ट में चेंज कर देंगे। ओके, सो करंटली एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड आबू धाबी रिगार्डिंग फूड पार्क्स डेवलपमेंट। फूड पार्क्स क्या होते हैं बेसिकली आपके, कि ये कुछ ऐसे आपके जोन्स आपने बना, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ऐसे आप फूड पार्क्स बनाते हो जहां पे जो फूड रिलेटेड आपकी जो भी बिजनेसेस या कंपनीज होती हैं उनको वहां पे आप एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हो। ठीक है, तो इंडिया यूएई यहां पे इंडिया के अंदर में, गुजरात के अंदर में फूड पार्क्स को डेवलप करेगा। ओके, तो ये आपके 4 एग्रीमेंट तो इंडिया यूएई के बीच में, और एक एग्रीमेंट यहां पे आबू धाबी और गुजरात के में आया था। मैनी अ टाइम यू माइट थिंक कि सिर्फ 4 ही हुए, बट एक गुजरात के साथ भी आपका यहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। मोर ओवर आपको एक ये फैक्ट पता पड़ा है, और यहां पे एक वो सीपा एंड बीआईटी वाला फैक्ट पता पड़ा है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपा। ओके, आगे मूव करते हैं। Okay, so it's group of minister to decide on tax on health life cover soon. So अभी आपका रिसेंटली जब आपका जुलाई में बजट आया था उसके अंदर में इट वाज अनाउंस कि जो आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उस पे भी जीएसटी रेट होगी, वो अब 18% होगी। तो उसके लेके देयर वाज मच अप्रोर कि अब जो लाइफ इंश्योरेंस भी अगर कोई पर्सन कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस कोई पर्सन कराता है, तो उस पे भी गवर्नमेंट अब जीएसटी यहां पे लेना चाहती है। तो यस, देयर वाज वेरी मच अप्रोर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि हम इसको जीएसटी काउंसिल में डिसाइड करेंगे, सो व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी व्हेन इज कम टू जीएसटी। जीएसटी के अंदर में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और आपकी जो जीएसटी की रेट्स होती हैं, जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर पे क्या जीएसटी होगी। तो ऐसी रिमेंबर दिस कि आपको लगेगा सिर्फ 4 टैक्स स्लैब्स हैं, 4 नहीं 5 टैक्स स्लैब्स हैं, तो 5% से पहले यहां पे 0% भी एक टैक्स स्लैब है। हर जगह आपको 4 टैक्स स्लैब सुनने को मिलेगा, बट 5 टैक्स स्लैब्स हैं। अगर क्वेश्चन आए 0% लिखा हुआ हो तो रिमेंबर दिस कि 0% आपकी एक टैक्स स्लैब है। ओके, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ओके, तो ये 5 आपकी
टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी रेट में, और जीएसटी काउंसिल होती है जिसका काम होता है, रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिकमेंड करना टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कि जीएसटी रेट्स प्रोडक्ट्स पे क्या उनको रखनी है। सो इफ यू रिमेंबर कि आपका कोई भी जीएसटी होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी एंड योर स्टेट जीएसटी, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के होते हैं या इंटर स्टेट होते हैं वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। बट रिमेंबर दिस की जो सीजीएसटी एसजीएसटीज है, सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल लगाता है, एसजीएसटी स्टेट लगाता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 12% की इंटरेस्ट है, 12% का जीएसटी रेट है, तो 6% यहाँ सीजीएसटी होगा और 6% यहां पे एसजीएसटी होगा। बट ये जो आपकी रेट्स होती हैं कि लेट्स से कि कोई टेलकम पाउडर है, टेलकम पाउडर के ऊपर पे हम 12%, 18% क्या लगाया जाएगा, वो जीएसटी काउंसिल यहां पे रिकमेंड करती है। बट अगर यहां पे स्टेट कोई एग्री नहीं करता है, वो डिफरेंट अगर यहां पे जीएसटी रखना चाहता है, सो इवन वो ये भी रख सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन ऑन द स्टेट्स और सेंटर टू फॉलो द रिकमेंडेशन। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये जो रिकमेंडेशन है दीज आर नॉन बाइंडिंग, दीज आर नॉन बाइंडिंग, और स्टेट्स अपने सहूलियत के हिसाब से इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है जो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस कि जीएसटी जो काउंसिल होती है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और इसको हेड करते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। सो निर्मला सीतारमन जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इसकी हेड होती हैं। एंड इसके अलावा इसके मेंबर्स में होते हैं कि जितने भी आपकी स्टेट्स हैं, स्टेट्स एंड यूटीज हैं, स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर हैं, वो सारे के सारे स्टेट किसी ना किसी मिनिस्टर को, प्रोबेबली किसी भी मिनिस्टर को अनाउंस कर सकते हैं, स्टेट मिनिस्टर को। बट यूजुअली जो टैक्स का मिनिस्टर होता है उनका या फाइनेंस का मिनिस्टर होगा, यूजुअली उसको इसका मेंबर बना के भेजा जाता है। और ये सब मिलके कंसेंसस से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या जीएसटी की रेट्स रखनी है। So this is regarding जीएसटी काउंसिल। मैं इसको और डिस्कस में इसलिए नहीं कर रहा हूं जीएसटी को, बिकॉज हम जीएसटी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू वांट अनदर डिस्कशन ऑन जीएसटी यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी हम उसमें जीएसटी को डिटेल में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ओके। बट इन द मीन टाइम दोज हु आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ जीएसटी, व्हाट यू हैव टू टेल मी कि जीएसटी डे जो होता है, जीएसटी डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो आप खुद की नॉलेज चेक करिए, इफ यू रिमेंबर कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर में हमने जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा था। सो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, एक तो आपको जीएसटी डे बताना है और दूसरा आपको बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसपे हमने जीएसटी फॉलो किया, ओके। सो अब नेक्स्ट न्यूज पे मूव कर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एट ब्रिक्स समिट इन रशिया, दोवाल में मीट चाइनीज मिनिस्टर वांग ही। सो अभी आपकी इस साल की जो ब्रिक्स की समिट है, इट इज बीइंग होस्टेड बाय द कंट्री ऑफ रशिया, जो आपका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है आपके, तो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर 5 ये ब्रिक्स वाले ही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड ओरिजिनली ब्रिक्स से पहले आपका ब्रिक था, जो एक टर्म 2001 के अंदर में जिम ओनील ने दिया था। ये वाले क्वेश्चंस ऑल्दो लगने में लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कहां आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। और जो पहली आपकी ब्रिक समिट, BRIC समिट थी, वो समिट भी रशिया में हुई थी इन 2009। एंड 2009 के समिट में हमने साउथ अफ्रीका को ज्वाइन करने का इनविटेशन भेजा था। और स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 आपका साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया था। 2011 के अंदर में हमारी फर्स्ट समिट होती है, ब्रिक्स की फर्स्ट समिट विच हैपेंड इन चाइना 2011। एंड इसकी समिट्स को याद करना कि इस साल किसकी थी, नेक्स्ट ईयर किसकी थी, वो भी करना बहुत ईजी है कि ये जो लेटर्स हैं इसी ऑर्डर में ही इनकी होती है। लास्ट जो समिट थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी। सो दिस टाइम दिस रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड। द सिंपल रीजन इज कि जो ब्राजील है वो इस साल G21 नॉट G20 G21 समिट को यहां पे होस्ट करने वाला है। आई होप यू नो दिस कि अब G20 G21 बन चुका है, G20 is G21। एंड अगेन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स हु इज द 21st member of G20 grouping, who is the next 21st member of the G20 grouping, जिसकी वजह से ये G21 बन जाएगा। So now जो आपका नेक्स्ट समिट है वो ब्राजील में होना था, और बिकॉज ब्राजील G20 समिट होस्ट कर रहा है, इट रिक्वेस्टेड द ब्रिक्स कि इस साल मैं समिट नहीं कर पाऊंगा ब्रिक्स की, सो प्लीज समवन एल्स डू इट। तो जो नेक्स्ट इन लाइन था रशिया इस बार की समिट को हेड कर रहा है। I hope this particular point is again important because 2023 दिसंबर 2023 से पहले, या फिर मैं कहूं 1 जनवरी 24 से पहले आपका जो ब्रिक्स वाज अ 5 मेंबर ग्रुप, बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर 1 जनवरी 2024 अब ब्रिक्स के अंदर में 10 मेंबर आ चुके हैं।
6 मेंबर्स को इनवाइट भेजा था, अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया, बट बाकी के जो 5 हैं वो अब ब्रिक्स के फुल मेंबर्स बन चुके हैं। मोर ओवर इट इज बीइंग रिपोर्टेड कि रशिया इस साल के समिट में 10 न्यू मेंबर्स को यहां पे इनविटेशन सेंड करने की बात कर रहा है कि वेरी सून, मे बी नॉट इन 25 बट 26 तक आपके इसमें 10 मेंबर्स और जुड़ जाएंगे। तो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक अ ब्रिक्स 20। तो जैसे G20 ऐसे ब्रिक्स 20 भी आपका शायद ये क्रिएट हो जाए, बट अभी तक ये श्योरिटी नहीं है। तो अभी आपका क्या है रशिया के अंदर में, तो इस साल अगर रशिया आपकी समिट को होस्ट करने वाला है तो उससे पहले बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। तो अभी आपकी सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में जिसमें अजीत डोवाल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, इज द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। तो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस ये 5 कंट्रीज को मिला के इनकी एक हाई ऑफिशियल मीटिंग हो रही है। कहां हो रही है? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर में। मोर ओवर अनदर पॉइंट विच यू शुड नो इज कि इस साल की जो रशिया की मीटिंग है वो हो रही है आपकी कजान में। कजान इज अ ऑटोनॉमस रिपब्लिक की क्या, सॉरी, रिपब्लिक ऑफ तटरस्तान है आपकी, जो आपका एक ऑटोनॉमस रिपब्लिक है इन द कंट्री ऑफ रशिया, और उसकी कैपिटल है कजान। जिसमें इस बार की जो 2024 की समिट है वो यहां पर आपकी होने वाली है। ओके, तो हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स शंघाई में है। सो आपसे मैं ये क्वेश्चन फिर से पूछता हूं एक और, कि यहां पे ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? SCO का हेडक्वार्टर कहां पे? प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल अपडेट रिगार्डिंग योर ब्रिक्स समिट। आगे मूव करते हैं। CDS जनरल चौहान रिलीजेस डॉक्ट्रिन ऑफ एम्फीबियस ऑपरेशन। तो आपने एक ये नई पोस्ट स्टार्ट करी थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, किस पर्टिकुलर ईयर में करी थी? तो दिस इज नॉट मेंशन, यू हैव टू अगेन, फिर से आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि किस ईयर में हमने CDS की पोस्ट को यहां पे स्टार्ट करा है। तो ये ईयर आपको बताना है, डेलिबरेटली नॉट इंक्लूडेड इट। तो जितने आप सवालों के जवाब देंगे, ट्राई टू रिकॉल करेंगे, उतनी ही आपको ये चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो CDS जनरल चौहान जो है अभी आपके, उन्होंने अपनी नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करी रिगार्डिंग एम्फीबियस ऑपरेशन। एम्फीबियस का मतलब, सो फ्रॉग इज एन एम्फीबियस एनिमल, कि वो पर्टिकुलर जानवर, वो वाले पर्टिकुलर एनिमल्स जो आपके लैंड में भी रह सकते हैं और सी या वाटर में भी रह सकते हैं। तो सिमिलरली एम्फीबियस ऑपरेशंस वो वाले ऑपरेशंस हो गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ नेवल पावर या मिलिट्री पावर करनी, दोनों मिलके यहां पे इस टाइप से कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कैसे उसमें फंक्शन करना है, उसको लेके हमने एक डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल्स यहां पे आपके CDS ने लॉन्च करे। एंड इस CDS की पोस्ट को क्रिएट करने का मेन पर्पस यही था कि हम जितने भी हमारी जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, योर आर्मी, योर नेवी एंड योर एयरफोर्स, अभी ये एक सिलुएट में वर्क करती है, मतलब अलग अलग वर्क करती हैं। देयर इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ दीज 3 फोर्सेस, और हम अब ट्राई कर रहे हैं थिएटर कमांड्स बनाने का, कि रेदर देन कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एयरफोर्स या आर्मी एक्टिव है, हम एरियाज को डिवाइड करेंगे और उन एरियाज के अंदर में देयर वुड बी अ सिंगल ऑफिसर, जिसके अंदर में आर्मी के ऑफिशियल्स भी होंगे, आर्मी के आपके सिपाहीज भी होंगे, एंड सेम इज द केस विद नेवल के ऑफिसर्स और उनके सिपाहीज, एज वेल एज एयरफोर्स के ऑफिसर्स और उनके सिपाहीज, वो सब एक सिंगल कमांड के अंदर में वर्क करा करेंगे। तो हमारा यही यहां पे मेन पर्पस था एक CDS को क्रिएट करने का। ओके, सो CDS, why is it important? Because he is the senior most appointee in armed forces. Also remember this कि जो CDS होता है ये सुपीरियर नहीं होता है आर्म फोर्सेस का। He is not superior to the other chiefs of armed forces. तो जो आपका आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है और जो एयरफोर्स का चीफ है, CDS उसका सुपीरियर नहीं है। इट इज जस्ट प्राइमस इंटर पास, प्रीमस इंटर पास, नॉट प्राइमस इंटर पास. I've written it here also. He is the first among equals. So just like आपका प्राइम मिनिस्टर भी आपका प्रीमस इंटर पार होता है, सिमिलरली ये भी आपका फर्स्ट अमंग इक्वल होता है. ही इज इक्विवेलेंट टू द अदर आर्म फोर्सेस. सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. बट इज द सीनियर मोस्ट अपॉइंटी इन आर्म फोर्सेस, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल. और सीडीएस जो होता है वो चेयरमैन होता है, परमानेंट चेयरमैन होता है ऑफ चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी, COSC, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी. बेसिकली जो आपके 3 आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, एंड प्लस सीडीएस, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ही इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर.
तो रेदर देन अब आपके आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो अलग अलग जाके डिफेंस मिनिस्टर को अपनी एडवाइस प्रोवाइड करें, सीडीएस इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर। तो जो बाकी के जो आपके आर्म चीफ्स के आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपके सीडीएस के साथ, और सीडीएस कोऑर्डिनेट करता है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। ओके, इसके अलावा ही एक्चुअली एक्ट्स लाइक आर्म फोर्स और सिविलियन लीडरशिप के बीच में एक लिंक की तरह वर्क करता है। सिविलियन लीडरशिप इज बेसिकली कि आपकी जो यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके और आपकी जो आर्म फोर्स है उनके बीच में ये लिंक की तरह वर्क कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कोई टेन्योर नहीं होता है और 65 इयर्स इनकी रिटायरमेंट एज हो जाती है। ओके, सो टेन्योर नहीं, आप जिस भी एज में बनोगे अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स आप इस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करने वाले हो। एंड हु वाज द फर्स्ट सीडीएस, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट सीडीएस कौन थे? करंट सीडीएस इज योर जनरल अनिल चौहान, तो ये यहीं पर ही मेंशन है, इसलिए आई एम नॉट आस्किंग यू। अनिल चौहान इज द करंट सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस कौन था इंडिया का? ही इज ओनली द सेकंड सीडीएस, अभी अनिल चौहान है आपके। फर्स्ट सीडीएस कौन था इंडिया का? यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो आपको दो चीजें बतानी है यहां पे सीडीएस के बारे में। पहला क्वेश्चन कि किस ईयर में हमने सीडीएस का ऑफिस क्रिएट करा था, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि इंडिया के पहले सीडीएस कौन थे। ओके, सो टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑल्सो। आगे मूव करते हैं आपके हिंदू के अंदर में से 2 एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च एट कोचिन शिपयार्ड। सो जो आपका कोचिन शिपयार्ड है जो लार्जेस्ट शिप मेकिंग प्लेस है, शिप मेकिंग इंडस्ट्री जो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी कोचिन के अंदर में ही है, और ये सबसे बड़ी कोचिंग आपकी शिपिंग कंपनी है, शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर फैसिलिटी। शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर फैसिलिटी जो है इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इज योर कोचिन शिपयार्ड। ओके, ये लार्जेस्ट है। एंड इसके अंदर में हमने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, सबमरीन्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमने कुछ शिप्स को कंस्ट्रक्शन का एक ऑर्डर दिया था, जिसके अंदर में हम टोटल 8 ऐसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स बनाने वाले हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स बनाने वाले हैं, टोटल 8 बनाई जाएंगी। 8 माही क्लास माहे बेसिकली क्लास का वर्ड हम कहां से यूज करते हैं कि कौन सी क्लास होती है, तो जो भी पहली शिप होती है उसके बाद जैसे इसमें 8 बनने वाली है, तो इन सबको हम आईएनएस माहे क्लास माही क्लास शिप बोलते हैं, जो यूजुअली पहली शिप होती है उसके नाम पे उस पूरी क्लास का नाम पड़ता है। तो एज ऑफ नाउ हम पहले इसकी तीन जो थे, हम इसकी पहले 3 इसको हम सर्विस के अंदर में पुट अप कर चुके थे, और हमने 2 और अभी लॉन्च कर दी हैं, तो ये 5 हो चुकी हैं, 3 और इसके बाद बनाई जाएंगी। जो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में। सो इट्स मोर ऑफ अ वन लाइनर। You have to know the name of these 5 anti-submarine warfare ships which have been recently launched by Cochin Shipyard. Okay? तो ये आपकी टोटल 8 बनाई जा रही है यहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, केस ऑफ क्लेड ट्यूब एमपॉक्स कंफर्म्ड, नॉट पार्ट ऑफ करंट WHO इमरजेंसी गवर्नमेंट। सो आपका जो एमपॉक्स है, सो एमपॉक्स इज अ वायरस रिलेटेड डिजीज, आपकी इलनेस है, वायरस इलनेस है आपकी, जिसको पहले हम मंकी पॉक्स बोलते थे, बट आपके WHO ने मंकी पॉक्स का नाम एमपॉक्स कर दिया, बिकॉज इट इज बिलीव कि अगर हम मंकी इसमें वर्ड यूज करते थे तो मंकीज को यहां पे डिस्क्रिमिनेट या उनके अगेंस्ट में मे बी कई कंट्रीज एक्शन लेना स्टार्ट कर दे, लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर दें कि मे बी जो पॉक्स हो रहा है, ये मंकी पॉक्स हो रहा है, ये इट इज बीइंग कॉज्ड बाय मंकीज, और उनके अगेंस्ट में शायद मे बी एक आपका मास किलिंग और ये सब हो सकता है, तो इसलिए हमने मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंटली इसको WHO ने हाईएस्ट लेवल जो इमरजेंसी का होता है बिफोर डिक्लेयरिंग समथिंग एज एपिडेमिक एक्सेट्रा, इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा हुआ है। सो इट इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, PHE कॉल्स बोलते हैं इनको, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO ने से डिक्लेयर करा हुआ है। सो इसकी हिस्ट्री क्या है, तो एमपॉक्स सबसे पहले आपका DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और प्रेजेंटली आपका DRC ही वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस इसके यहां पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो एमपॉक्स है वो ह्यूमंस में रिपोर्ट किया गया था 1970 में। डू नॉट थिंक सबसे पहले ह्यूमंस में आया था। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स नाम इसलिए पड़ा था बिकॉज 1958 में फर्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर वायरस मंकीज में आइडेंटिफाई हुआ था, बट फॉर अस द इंपॉर्टेंट ईयर इज 1970 कि फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में कभी आइडेंटिफाई हुआ। तो अगेन कॉन्गो के अंदर में, DRC के अंदर में 1970 में फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज होता है। इसके बाद करंट आउटब्रेक के अंदर में कौन सा इसका सब वेरिएंट यहां पे आपको परेशान कर रहा है, तो ये है आपका क्लेड IB, क्लेड 1B जो वेरिएंट है वो यहां पे परेशान कर रहा है। एमपॉक्स के 2 डिफरेंट क्लेड्स होते हैं। क्लेड्स इज बेसिकली टाइप्स, क्लेड्स होते हैं टाइप्स।
क्लेड्स बेसिकली टाइप्स होते हैं, और टाइप में भी कि आपका इसमें ओरिजिन कहां से हुआ है, एनिमल ओरिजिन है या ह्यूमन ओरिजिन है। क्लेड 1 है वो एनिमल ओरिजिन के हैं, और क्लेड 2 है ये आपके ह्यूमन ओरिजिन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा एक्टिव है। तो यहां पे दो हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2 है। क्लेड 1 जो है वो डेडलियर है एज कंपेयर टू क्लेड 2। क्लेड 2 रीच ज्यादा करता है, क्लेड 1 में मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर कोई चीज आपको मारती नहीं है, कोई चीज आपको मारती नहीं है, तो उसका स्प्रेड होने का चांस बढ़ जाता है। ऑब्वियसली बिकॉज अब आप एक वेक्टर बन चुके हो, अब आप एक ट्रांसमिशन का मॉड्यूल बन चुके हो कि आपसे भी जो डिजीज है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। सो ऑब्वियसली अगर कोई चीज स्प्रेड ज्यादा होती है तो उसकी मोर्टिलिटी कम होती है। क्लेड 1 इसीलिए ही कम स्प्रेड होता है बिकॉज इसकी मोर्टिलिटी हाई है। तो जो इसको कैरी कर रहा है, जो इसका कैरियर है, उसकी डेथ होने के बाद वहीं पर ही वायरस भी आपका डेड हो जाता है उसके साथ ही। इसके बाद ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो एम पॉक्स का जो ट्रांसमिशन इट इज मेजरली फ्रॉम एनिमल्स ओनली। तो जो आपका क्लेड 1 जो स्टार्ट हुआ था आपका ये, तो ये मंकीज से ही, आपका एनिमल से ही, आपके रोडेंट्स के थ्रू, आपके मंकीज के थ्रू मेजरली आपके ये एनिमल से ह्यूमंस में रीच हुआ। बट जो आपका क्लेड 2 है, जो इसमें जो क्लेड 2 है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसके अंदर में बहुत कॉमन है। और अभी जो स्प्रेड हो रहा है, सो यहां पे क्या है कि केस ऑफ क्लेड 2 एमपॉक्स कन्फर्म नॉट पार्ट ऑफ करंट WHO इमरजेंसी, कि जो वर्ल्ड ओवर अभी आपका क्लेड 2 स्प्रेड हो रहा है उसका केस नहीं है। दूसरा क्लेड 2 का यहां पे हमने केस मिला है हमें, जो इतना फास्ट स्प्रेड नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग एमपॉक्स। अब क्या एमपॉक्स की कोई वैक्सीन है, तो यस देयर आर 3 एमपॉक्स वैक्सीन, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट है अंकारा। इट इज अ मॉडिफाइड वैक्सीनिया, वैक्सीनिया अंकारा। वैक्सीनिया किसको बोला जाता है? वैक्सीनिया इज बेसिकली कि जब आप लाइव वायरस को ही, तो स्मॉल पॉक्स के अंदर में भी हम लाइव वायरस, जो एक्चुअल वायरस है उसी को हम बॉडी के अंदर में कम क्वांटिटी के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको लर्न करता है और फिर वो उसी से ही फाइट करता है। तो अभी एज ऑफ नाउ 3 वैक्सीन है, LC16M8 और ACAM2000, ये 3 वैक्सीन है आपकी। तो नंबर याद कर लीजिएगा, और अंकारा जो नाम है, टर्की की कैपिटल भी आपकी, तो उससे भी आप एमपॉक्सिन याद कर सकते हो। ट्रीटमेंट, सो देयर इज नो ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो आपके लेट से फीवर है तो आपको फीवर की गोली दी जाएगी, और कोई आपके कोई सिम्टम्स जो होते हैं तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपका इलाज होता है। तो अभी कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। सो दिस इज अ शॉर्ट रिगार्डिंग योर एमपॉक्स वायरस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अभी आपका हिंदू में एक एडिटोरियल में ये मेंशन है, ओवर 70% चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू मेल न्यूट्रिशन। तो रिमेंबर दिस कि आई यूजुअली आस्क यू कि जो चार्ट्स होते हैं वो सब आपको नहीं करने होते हैं। जो ये डेटा दिया हुआ होता है, डेटा सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पे वापस से आप इसे लिंक कर सकते हो विद द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ऑल्दो इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसको क्रिटिसाइज करती है। रीजन बीइंग कि जो इनकी मेथोडोलॉजी है, इससे एक तो इंडिया एग्री नहीं करता कि जिस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करा है, आपने इंडिया के अंदर में मेल न्यूट्रिशन या हंगर को इक्विवेलेंट कर दिया विद अफ्रीकन कंट्रीज, विच पॉसिबली कैन नॉट बी ट्रू। कि इंडिया इतना ज्यादा अंडर डेवलप नहीं है कि वो जो बाकी की अफ्रीकन कंट्रीज है उनके साथ कंपीट कर। मोर ओवर आपके जो आसपास के नेबर्स हैं, ऑल ऑफ दीज नेबर्स, ये इंडिया से बेटर रैंक्ड है। हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, वहां पर आपका जो हंगर इंडेक्स है वो इंडिया से बेटर है? इट इज एक्सेप्टेबल कि श्रीलंका में, नेपाल में जहां पे आपका HDI बेटर है, वहां पे हो सकता है बांग्लादेश में भी आपकी HDI रैंक बेटर है, बट जहां पे पाकिस्तान में, जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया से बहुत पीछे है, उसके इक्विवेलेंट कहां से इंडिया का, या इंडिया उसे पीछे कहां हो सकता है? ओके, एंड यू वुड सी कि ये 61, 62 इन रैंक्स में है, 109 पे है, और इंडिया यहां पे 111th रैंक है। तो इंडिया का ऑल्दो ये 2023 का इंडेक्स है, तो लास्ट इंडेक्स जो था वो 23 का ही था आपका, और इसमें इंडिया की रैंक 111 आई है। ओके, ये पर्टिकुलर जो हंगर इंडेक्स है आपका, ये हंगर या आपकी यहां पे हंगर को नहीं चेक करता है, एक्चुअल में इट्स इंडेक्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को चेक करने वाला ये आपका इंडेक्स है। ओके, एंड इसको पब्लिश कौन करता है? तो 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हेल्थ, जो दोनों मिलके इस पर्टिकुलर करते हैं। पहले इफ्री भी इसमें इन्वॉल्व था, बट अब इफ्री इसमें नहीं इन्वॉल्व होता है। अब सिर्फ ये 2 NGOs हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और बेसिकली 4 इंडिकेटर्स पे ये पर्टिकुलर जज किया जाता है: चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टिलिटी एंड अंडर नरिशमेंट। व्हाट एग्जैक्टली स्टंटिंग? स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज। एज के हिसाब से आपकी हाइट कम है, उसे स्टंटिंग माना जाता है। एंड व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग? चाइल्ड वेस्टिंग इज कि आपका वेट कम है एज कंपेयर टू योर हाइट, कि हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, तो इसे चाइल्ड वेस्टिंग माना जाता है।
तो ये 4 इंडिकेटर्स को हम 1/4 का वेटेज देते हैं और उस हिसाब से जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनका यहां पे आपका एक वैल्यू निकलता है जिस हिसाब से आप कंट्रीज को रैंक करते हो। ओके, इसके बाद एक और टर्म आई थॉट कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं विच इज हिडन हंगर। हिडन हंगर इसके सामने में देखने में तो बच्चा जो है उसको न्यूट्रिशन मिलता हुआ दिख रहा है, उसका जो कैलोरी इंटेक है वो तो बढ़िया है, बट एक्चुअल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी डेफिशिएंसी। एंड इट इज वेरी कॉमन कि जब आपको फूड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको स्टेपल फूड तो मिल रहा है, व्हीट और राइस मिल रहा है, बट आपकी डाइट के अंदर में वेजिटेबल्स मिसिंग है आपके, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो, अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज के आइटम्स मिसिंग है, एग मिसिंग है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कैलोरी इंटेक है वो तो अच्छा है, बट यहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कभी आपको ये टर्म दिखे हिडन हंगर, तो इंग्लिश में रीजनिंग में इस टाइप के कभी पूछा जा सकता है। तो हिडन हंगर इज बेसिकली कि जब आपको सीवियर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो वो हिडन हंगर होता है। अब ये पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग क्या है कि इंडिया के अंदर में जो 70% चाइल्ड डेथ्स होती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। और इस चार्ट में आप देखोगे तो सबसे प्राइमरी रीजन जो आपका 4 टाइम्स है उसके सेकंड बिगेस्ट रीजन है, एंड मोर देन मतलब 70% में लो बर्थ वेट, कि वेट जो था बच्चे का वो बर्थ के टाइम में कम था, बहुत लो था, टू लो। तो यहां पे इट शोज कि चाइल्ड वेस्टिंग के केसेस बहुत ज्यादा हैं, अंडर नरिशमेंट के केसेस ज्यादा हैं। एंड व्हाई इट इज अलार्मिंग इज कि बिकॉज अगर मैं वर्ल्ड का यहां पे एक एवरेज निकालता हूं तो वहां पे 50% डेथ, तो यस मेल न्यूट्रिशन इज अ बिग रीजन फॉर चाइल्ड डेथ। जो आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 में हम मोर्टेलिटी को चेक करते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी इज अंडर 5, 5 साल से पहले बच्चे की डेथ हो गई। यस इट इज वेरी हाई, 50% जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वर्ल्ड के अंदर में, इट इज बिकॉज ऑफ योर मेल न्यूट्रिशन ओनली। बट इंडिया में ये जो रेशियो है इट इज 70% डेथ इज रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन, एंड नॉट जस्ट मेल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड बट इट कैन बी ऑफ चाइल्ड और ऑफ द मदर ऑल्सो। कि फॉर एग्जाम्पल कि प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा, इसलिए जो बच्चा था उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला उसके प्रेगनेंसी के टाइम में, एंड इस वजह से जब बच्चा पैदा होता है या बाद में अप टू 5 इयर्स ऑफ एज वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है डिजीज के, और उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। तो आप यहां पे डायरेक्टली 70% चाइल्ड डेथ को रिलेट कर सकते हो मेल न्यूट्रिशन से। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू बिकॉज इस टाइप के आपके पैसेजेस आ सकते हैं। ओके, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जीके में भी आ सकता है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। आगे मूव करते हैं आपका इजरायली रेड्स वर्सनिंग कैलामिश वेस्ट बैंक सिचुएशन यूएन राइट्स चीफ। तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चीफ ने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि जो इजराइल की रेड्स करी गई हैं आपकी वेस्ट बैंक में, इससे बहुत ही कैलामिटी टाइप सिचुएशन आने वाली है, और हमें बहुत सारी कंट्रीज को मिलकर प्रेशराइज करना चाहिए इजराइल को कि ये जो इनके जो ये इस टाइप की ये एक्शंस ले रहा है उसको ये आप स्टॉप करें, और देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सीज फायर, और देयर शुड बी अ स्टॉपेज ऑफ दिस काइंड ऑफ अटैक्स ऑन अदर कंट्रीज। रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम जब ये न्यूज पब्लिश हुई उसके जस्ट बाद ही एक और आपकी इजराइल ने सीरिया के अंदर में अटैक किया, और सीरिया के अंदर में 40 पीपल हैव डाइड। सीरिया के अंदर में अटैक किया और जहां पर भी 40 पीपल हैव डाइड। तो ये भी एक सीवियर न्यूज है कि यहां पे कम करने के बजाय इजराइल जो अटैक्स है उनको इंक्रीज ही करता जा रहा है। सो वी हैव डिस्कस्ड इजराइल हमास मेनी अ टाइम्स, बट यहां पे ह्यूमन राइट काउंसिल की बात है विच इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर यूएनएचआरसी? यूएनएचआरसी एग्जैक्टली है क्या आपका? तो ये जो काउंसिल है आपकी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर ही। तो यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी सिस्टम है, सिस्टम जो है उसकी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट से इसके अंदर में आपके मेंबर्स है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? सो इट्स नॉट it was not created in 1945. 2006 के अंदर में इस काउंसिल को क्रिएट किया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बिकॉज इट वाज फेल्ट कि ह्यूमन राइट्स के मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास एक कमिटी होनी चाहिए, अलग काउंसिल होनी चाहिए। तो इसने रिप्लेस करा जो इससे पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जो आपका इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। इट वाज फेल्ट कि हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो इसके लिए हमने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अब प्रेजेंटली इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है? तो जो आपका OSCHR है, ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यही इसी का ही ऑफिस इसका सेक्रेटेरिएट की तरह वर्क करता है। तो OSCHR का सेक्रेटेरिएट है आपका जिनेवा के अंदर में। तो अगेन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसका भी ऑफिस कहां पे होगा? आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। करंट चीफ है इसके वोल्कर टर्क, जो स्टेटमेंट दिया गया इट इज गिवन बाय वोल्कर टर्क, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
मेंबरशिप, तो मेंबरशिप के अंदर में रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं इसके, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्शंस होता है। एंड जो आपके जीए के टोटल मेंबर्स हैं उसमें से 47 यूएन मेंबर्स इसके मेंबर्स बनते हैं और उनका 3 ईयर का टर्म होता है, 2 साल लगातार, यानी टोटल 6 ईयर तक वो एक साथ बन सकते हैं। देन उसके बाद वो नहीं बन सकते हैं, उसके बाद में कोई और आएगा और फिर जब 3 साल और हो जाएंगे उसके बाद वापस से वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है इन्वेस्टिगेट करना ह्यूमन राइट्स के एलिगेशन बाय यूएन मेंबर स्टेट। तो जो भी यूएन मेंबर स्टेट्स में या यूएन के कहीं पर भी कंट्री, किसी भी वर्ल्ड के अंदर में कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने का काम आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ही होता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चाइना सेट टू कंडक्ट जॉइंट नेवल एयर ड्रिल्स विद रशिया। सो अगेन आपकी यहां पे एक नई एयर और नेवल एक्सरसाइज, जॉइंट एयर नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है बिटवीन चाइना एंड रशिया। सो इट्स मोर ऑफ अ वन लाइनर बट यू शुड नो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इट इज नदर्न यूनाइटेड 2024 एक्सरसाइज। सो इट्स अ जॉइंट नेवल एंड एयर एक्सरसाइज बिटवीन चाइना एंड रशिया। जो सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओहोक्स, ये दोनों आपकी जापान के पास की ही सीज है जहां पे ये जॉइंट ड्रिल करने वाले हैं। अगेन I'll repeat, नदर्न यूनाइटेड एक्सरसाइज जो है इट्स अ जॉइंट नेवल एंड एक्सरसाइज बिटवीन चाइना एंड रशिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी हो गया है आपके लिए। और लेट्स से कि अगर यहां पे रशिया यूक्रेन वॉर आता है तो यहां पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन क्लैट में भी आ सकता है। ओके, तो ये आपका एक वन लाइनर है। सो मेनी स्टूडेंट मिस आउट ऑन दीज वन लाइनर्स। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं हिंदू पे। सो अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन जो होता है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। आई नो पेरिस ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और आपका T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो भी उनके विनर्स जो होते हैं, तो सिंगल्स विनर्स तो आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। तो 4 आपके जो ग्रैंड स्लैम्स हैं आपके टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, योर फ्रेंच ओपन, योर विंबलडन एंड देन योर यूएस ओपन, इन चारों के मेंस विनर और विमेंस विनर। और डबल्स के अंदर में अगर इंडिया ने कुछ विन करा है तो उसके उस वाले विनर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर में एक इंडियन बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू विन द ऑस्ट्रेलियन डबल्स ओपन। तो पहले मतलब ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक ग्रैंड स्लैम का जो डबल्स टूर्नामेंट है वो जीता था। ओके, तो यहां पे यूएस ओपन अभी कंप्लीट हुआ है तो उसके मेंस और विमेंस के जो विनर्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो जेनिक सिनर ने मेंस का जो टूर्नामेंट है, सिंगल्स टूर्नामेंट है, उसको विन करा है। सो अगेन इन द कमेंट बॉक्स यू हैव टू मेंशन द कंट्री, इनकी कंट्री कौन सी है। एंड विमेंस का टूर्नामेंट है, इट इज वॉन बाय अरीना साबालेंका, और अगेन इनकी कंट्री कौन सी है। सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि जेनिक सिनर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और अरीना साबालेंका है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दिस टेनिस टूर्नामेंट्स आपको चेस पे भी फोकस करना है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है कि टर्की जो है वो अरब लीग की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा आफ्टर 13 इयर्स। तो अरब लीग आपकी कई बार न्यूज में आ चुकी है, इजराइल वॉर के टाइम में भी अरब लीग आपका बहुत बार यूज होता है, तो इस वजह से अरब लीग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अरब लीग का हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगेन इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल मतलब बेसिकली जो कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज की गवर्नमेंट है वो ही इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओके, तो जितने भी आपकी अरब कंट्रीज हैं सारे के सारे अरब लीग का पार्ट है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1945। और इसका बैकग्राउंड क्या था इसके क्रिएशन होने का। एक तो यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पोस्ट वॉर कॉलोनीज थी उनको फ्री करने के लिए, कि जो पोस्ट वॉर कॉलोनीज है उनको कैसे फ्रीडम दिलाना है अरब कंट्रीज के बीच में। और दूसरा इट वाज आल्सो क्रिएटेड टू काउंटर क्रिएशन ऑफ अ पैलेस्टीन, काउंटर द क्रिएशन ऑफ अ Jewish state in Palestine। Jewish state जो पैलेस्टीन में बनाई गई, लेटर इट बिकेम इजराइल। इसको काउंटर करने के लिए इसका यहां पे क्रिएशन हुआ। तो ये आपके इजराइल हमास वॉर से भी कनेक्ट हो जाती है अरब लीग। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था, तो ये अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल था 1944 में। ईयर नहीं, प्रोटोकॉल तो प्लीज याद कर लेना। अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल था विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ अरब लीग। नाउ हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, तो जो इजिप्ट था, इजिप्ट वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अरब लीग। इजिप्ट जो था 1945 में इट वाज द मोस्ट पावरफुल आपका अरब कंट्री, अनलाइक जो अभी आपके इजराइल, टर्की और सऊदी अरेबिया, ईरान, ये जो आपके मेजर सुपर पावर बन गए। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अरब लीग इजिप्ट वाज द मोस्ट पावरफुल अरब नेशन एट दैट टाइम, और इसका बहुत ज्यादा हेफ्ट होता था कोई भी डिस्कशन के अंदर में। तो इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, दीज 6 कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अरब लीग।
अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे? सो इसका हेडक्वार्टर आपका कायरो इजिप्ट के अंदर में ही है और इस बार की समिट मई में इसकी समिट हो चुकी है मनामा बहरीन के अंदर में मनामा में आपकी इसकी समिट हुई थी 2024 की। अब इसके मेंबर्स कौन से? सो बहुत सारे मेंबर्स है, 22 कंट्रीज के मेंबर्स है। तो रेदर देन रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द कंट्रीज एटलीस्ट रिमेंबर द नंबर्स कि 22 मेंबर्स अरब लीग के कौन कौन तो नहीं, कितने मेंबर्स हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो 22 मेंबर्स हैं। मोर ओवर ऑब्जर्वर स्टेटस यहां पे 7 कंट्रीज को मिला हुआ है। प्लीज अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको कहीं पे 4 कहीं पे 3 या 5 मिलेंगे, बट एक्चुअल में इसके 7 मेंबर्स। अगर आप अरब लीग की वेबसाइट पे जाओगे तो देयर आर 7 मेंबर्स जिसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो आपकी कंट्री है इसको भी अरब लीग के अंदर में ऑब्जर्वर स्टेटस है। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फुल मेंबर, जो मेंबर्स है, और ऑब्जर्वर में डिफरेंस क्या होता है कि ऑब्जर्वर स्टेट्स जो होती हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है मीटिंग्स को, वो उसमें वोटिंग नहीं करती, उनका कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता है। दे आर ओनली देयर टू ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अरब लीग। ओके, तो इंडिया हैज अ ऑब्जर्वर स्टेटस इन अरब लीग। इसके बाद इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अरब काउंसिल। ओके, तो अरब काउंसिल इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो आपकी अभी समिट जो हुई थी वहीं पर इस काउंसिल इसकी मीटिंग्स को हैंडल करता है, डिसीजंस लेता है। रिमेंबर दिस कि बिकॉज टर्की के रिलेटेड अरब लीग से न्यूज आई है, सो दे माइट फॉर्म अ क्वेश्चन कि जहां पे आपको 3 कंट्रीज दी हुई हो और एक टर्की दिया हुआ ऑप्शंस के अंदर में, एंड द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अरब लीग। तो नाउ यू शुड नो कि 22 कंट्रीज में याद करने की नहीं बोल रहा हूं, बट अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो ट्रिक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टर्की का नाम दे दिया, बिकॉज इफ यू हैव नॉट स्टडीड अरब लीग यू वुड थिंक कि टर्की भी इसका मेंबर है। 13 साल से मेंबर नहीं था बट अब मेंबर बन चुका है। सो यू शुड पे अटेंशन टू दिस थिंग कि टर्की इज नॉट अ मेंबर ऑफ अरब लीग। ठीक है, तो 22 मेंबर्स याद ना करें, बट बी स्मार्ट और एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए टर्की इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग द अरब लीग न्यूज। So okay students, so these were the important news from today's Hindu and Indian Express। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इफ यू फील कि कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज प्रोवाइड अस फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं आज के सेशन के अंदर प्लीज ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आपको ही रिकॉल करने की वजह से उनको याद करने में आसानी होगी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।